students, welcome back in the 8th class chapter of History Administration under the British. In this chapter, firstly we have done the dues system. After that we have come to know the Regulating Pay Act. After that, Pitt's India Act. And today we are going to learn about the Charter Acts. These are four. First is Charter Act of 1793. Second is Charter Act of 1813. Third is Charter Act of 1833 and fourth is Charter Act of 1853. So in this way we will study all the four Charter Acts today. After that we will come to know about the civil service. This service is known as the steel frame of the Indian administration. So let us come to know that what are the Charter Acts. After the Pitt's India Act of 1784, let us know about the Charter Acts. First charter is Charter Act of 1793. Under the Charter Act of 1793, the company could retain its monopoly over the eastern trade for another 20 years. The Supreme Court was made powerful and company's officials were forbidden to accept gifts of any kind. Charter Act 1793 के अकॉर्डिंग कंपनी को मोनोपोली एकाधिकार मिल गया था 20 सालों तक ईस्टर्न ट्रेड पर, पूर्वी व्यापार पर। सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बनाया गया था और कंपनी के ऑफिशियल्स को किसी भी प्रकार का गिफ्ट लेने से मना किया गया। नाउ द सेकंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813. According to the Charter Act of 1813, the monopoly of the company over the Indian trade was abolished. The company was asked to spend more on Indian education. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का एकाधिकार भारतीय व्यापार पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और कंपनी को कहा गया कि वह भारतीय शिक्षा पर अधिक खर्च करेगी। तो इस प्रकार 1813 एक्ट के दौरान एक्ट के अंडर जो है शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का कंपनी को कहा गया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833. According to this act, the Governor General and Council had full powers over the civil and military affairs of the company's territories in India. He was fully empowered to exercise all the law-making and financial powers of the provinces. इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास फुल पावर थी कंपनी के टेरिटरी इन इंडिया, भारत के क्षेत्रों में कंपनी टेरिटरी इंडिया जो कंपनीज के क्षेत्र थे भारत के अंदर, उनके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की पूरी पावर काउंसिल के पास थी। ही वॉज फुली एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज ऑल द लॉ मेकिंग, सारे कानून बनाने का अधिकार उसके पास था और प्रोविंसेस की सारी वित्तीय शक्तियां भी उसके पास थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1853. अंडर दिस एक्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड ऑल ओवर द इंडियन एम्पायर until the parliament decided to take the Indian Empire under the crown directly. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन एम्पायर में बढ़ाया गया जब तक पार्लियामेंट ने डिसाइड नहीं किया टू टेक द इंडियन एम्पायर अंडर द क्राउन डायरेक्टली, कि वो क्राउन में, शासन में डायरेक्टली उसको ले ले, शामिल कर ले। इस प्रकार इस एक्ट का पूरे इंडियन एम्पायर पर पार्लियामेंट का कंट्रोल रहा। Now see student, the civil administration under it, the company. The civil service, Lord Cornwallis was determined to rectify the administration. Lord Cornwallis ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो प्रशासन को सुधारेगा, रेक्टिफाई करेगा। So he brought the Indian civil service into existence in 1793. इसलिए वो 1793 में ICS को लेकर आया। This service is known as the steel frame of Indian administration. Lord Cornwallis and the Governor General who succeeded him excluded Indians from the company civil service and reserved all posts for the Englishmen. सारी पोस्ट जो हैं इंग्लिश अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व रखी गई और भारतीयों को इसमें से निकाल दिया गया। Till 1853, all the appointment to ICS were made through nomination by the directors of the company. जितने भी ICS की अपॉइंटमेंट हुई वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी के थ्रू हुई। लेटर ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस, लेकिन बाद में एक खुला जो प्रतियोगिता शुरू की गई जिसमें एग्जामिनेशन, परीक्षा के शुरू की गई। इन प्रैक्टिस हाउएवर द इंडियंस कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अथॉरिटी
The young recruits of the civil services were totally ignorant of Indian affairs. हालांकि इंडियंस को इस अपॉइंटमेंट से बाहर रखा गया, लेकिन जो यंग रिक्रूट्स और सिविल सर्विस लगाए जा रहे थे वो इंडियन अफेयर्स के बारे में इग्नोरेंट थे, यानी कि जानते नहीं थे। इंडियन अफेयर्स के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं था। इन 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, वाज ओपन टू ट्रेन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव। 1801 में विलियम कॉलेज कलकत्ता में खोला गया, जिसमें इन एडमिनिस्ट्रेशन को, इन प्रशासकों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। अनदर कॉलेज वाज सेटअप इन हैलीबरी इन इंग्लैंड, एक कॉलेज दूसरा इंग्लैंड में खोला गया। आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट वाज मेड थ्रू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 1853 के बाद ये जो नियुक्ति थी वो एक प्रतियोगिता परीक्षा के थ्रू होने लगी। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन वाज 23। जो इसके लिए मिनिमम एज थी इस एग्जामिनेशन के लिए वो 23 ईयर्स थी। एंड इट्स सेंटर्स वर इन इंग्लैंड, और इसके सेंटर्स जो केंद्र थे वो इंग्लैंड में थे। वाइल द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वाज इंग्लिश, और इस परीक्षा का जो मीडियम था वो अंग्रेजी था। द इंडियंस वर एंटाइटल्ड टू द सबऑर्डिनेट पोस्ट ओनली इवन आफ्टर 1858। और इंडियंस को केवल उस नीचे के पद पर काम करना पड़ता था इवन आफ्टर 1858 के बाद भी इंडियंस को जो सबऑर्डिनेट पोस्ट दी जाती थी। इस प्रकार यू हैव सीन दैट इन द सिविल सर्विस Indians were excluded. Thank you.